Okay, Ji, last time I left you off with this question from Freud's theory. Is survival the ultimate goal for everyone in whatever they do or don't do? I also referred to a video that I said you could watch, uh, short film. If you have watched it, well and good. नहीं तो फिर you can go and watch it. हमारे उसमें है lecture related videos के अंदर टीवी के नाम से. Um, So, like I said, कि Freud का जो concept था, that was based on Eros and Thanatos, and he believed that ultimately every person has this love instinct, yeah, sexual instinct, which is the instinct to survive, and that instinct is what we carry on, and because of that instinct, we continue to do whatever we are doing. तो वो कहता है कि हर चीज की जो motivation है वो इसी survival instinct से आती है. Every action has ultimately the goal for survival. But on the other hand, there is also a death instinct, which is the instinct for self-destruction, which is usually projected outwards. तो दुनिया में हम उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं on other people, and some people they become very aggressive, जो अपनी needs को repress नहीं कर सकते, जो उसको दबा नहीं पाते. So keeping that in mind, if we see that all those people who do display self aggression, suicidality है, self harm है, things like these, जो कि survival के against जाता है, people who are deliberately engaging in aggressive action, तो वो फिर उसी तरह से है कि it means कि their death instinct has taken over, their death instinct is more powerful. भी जगह थी, एक repressed जगह थी, it has come out of it, and now it is in their मतलब that is what is influencing the people's behavior. So ultimately for a healthy person motivation जो है वो हमेशा survival है, and for somebody who is going to because of which they are not able to work in a normal healthy manner. ठीक है, जिसको फ्रॉइड नॉर्मल कहता है. अगेन दिस इज जस्ट वन थियरी. So according to him, normal healthy जो behavior है, that would mean that you are going towards survival, and anything contrary to that is is not healthy. ठीक है. So moving on, the next theory that we have is the incentive theory. Again, for motivation, this is very simple. It simply means कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, we are looking for incentive. Incentive is like a reward. So it is clear that this is this is a behavioral theory. Okay, so it is completely based on the reward that you're looking for. So it says कि people are motivated to do stuff because at the end of it उनको कुछ ना कुछ incentive मिल रहा होता है. तो हम बड़े बड़े कामों में तो we can apply this, but even in little things we can simply apply that. If we eat something, if we drink something, so it is giving us a feeling of एक फुलफिलनेस है, कंप्लीशन है, जो भी इस तरह की चीजें कि दैट रिवॉर्ड, द सेटिस्फैक्शन इज द रिवॉर्ड फॉर अस, दैट इज द इंसेंटिव. चेंज नहीं हुई है, हैज द स्लाइड. मुझे बता दें एवरीवन इफ यू कैन सी द स्लाइड ऑफ टू फैक्टर थियरी. नो मैम, अभी आ गई। नहीं आई? आगे ठीक है. ओके, ठीक है. टू फैक्टर थियरी वाज on job environment. So this was based on job environment.
इन्होंने जॉब सेटिस्फैक्शन देखी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वर्क प्लेस पे उनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों लोग काम करते हैं, व्हाट इज द factor of motivation behind everything else as well. So according to this theory, they said कि ये जो two factors दो factor हैं, they are motivation and hygiene. Theory is इसके अंदर हाइजीन फैक्टर क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज मोटिवेशन. एंड मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि अगेन मोटिवेशन फैक्टर इन दिस थियरी इज दैट we are when we feel कि whatever we are doing इससे हमें growth मिल रही है, इससे हमें satisfaction मिल रही है, there is a personal growth है, एक learning है, एक understanding है. ठीक है, so if you feel like there is some kind of growth internally and this is completely internal how you feel about it, that is the motivation factor. So it says कि किसी भी job satisfaction के लिए जैसे हमने कहा कि because this theory was developed on job satisfaction. So we'll start with that, but then we can see how the motivation part of this theory means that you feel like this, whatever you're doing, is say you have some kind of personal growth. That is the first factor. Second is hygiene, and hygiene refers to the physical and the emotional comfort. तो वो जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप कितना कंफर्टेबल हैं, फिजिकली कितना कंफर्टेबल हैं, इमोशनली कितना कंफर्टेबल हैं. So he says that these are the two things which together determines whether you are going to continue or not. या फिर हम ये भी कह सकते हैं whether you're satisfied with what you're doing or जैसे अब he says कि अगर motivation जो है वो आपकी मतलब you're not getting any kind of कोई growth, but अगर you are still having the physical comfort है, emotional comfort है, maybe still you will continue to work क्योंकि वो ज्यादा important होता है लोगों के लिए. But अगर hygiene factor आपकी proper नहीं है, पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर even though there is some the motive doing dissatisfaction हो सकती है. इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लें, हम अभी जॉब से ही स्टार्ट करते हैं कि देर इज आपका काम है, इट इज रेफर टू योर मतलब योर फील्ड. ठीक है, तो आपकी फील्ड का कोई काम है एंड यू गेट अ जॉब इन सम, मतलब माई अंडरस्टैंडिंग is कि आपकी जॉब्स लेबोरेटरीज वगैरह में भी होंगे. ऐसे टेस्ट जो और कहीं नहीं होते वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो आपका वहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर आपका कंप्लीट है कि यू नो दैट देयर इज गोइंग टू बी पर्सनल ग्रोथ. सेकंड, हाइजीन करते हैं तो फिर यू नो कि द प्लेसेस मतलब वही है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वेल बिल्ट है, एयर कंडीशनिंग मौजूद है, आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपको रूम मिला हुआ है वो आपको अलग से मिला हुआ है. ठीक है, ये चीजें आपकी हाइजीन का फैक्टर है. तो दिस इज आर अजम्पशन बिफोर एंटरिंग कि हाँ इस जगह की हमें पता है कि इस तरह से हो सकते हैं, वेटेड टू एक्सेप्ट अ जॉब फ्रॉम अ प्लेस लाइक दिस. अगर हमें अब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका सुपरवाइजर है वो आपको थोड़ा सा नहीं, आप ये समझिए और बहुत ज्यादा जो है वो आपको सॉर्ट ऑफ बुली करता है. आवाज गायब हो रही है और किसी के साथ भी ये हो रहा है तो मुझे बताइए, तो आई विल रिपीट इट. आवाज मुझे बताइए तो मैं सारा कुछ रिपीट करती हूँ दोबारा से. लेट मी ओके, इसका मतलब मेरे कनेक्शन के साथ मसला है. लेट मी जस्ट ट्राई टू चेंज माय कनेक्शन.
अच्छा जी, अब मुझे बताइए, तो मैं वॉइस क्लियर ना हो? बीच में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप लोग लिख जरूर दिया करें जिसको भी हो रही हो, क्योंकि उससे मुझे फिर आइडिया हो जाता है कि कनेक्टिविटी इशू आपकी तरफ है या मेरी तरफ है, तो आई कैन ट्राई टू चेंज माई कनेक्शन अगर ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा चलें, लेट्स कंटिन्यू। मैं दोबारा से बता देती हूँ जो अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी मुझे दोबारा से बता दें कि व्हाट वाज मिस, डिड यू ऑल फॉलो द इंसेंटिव थियरी जो मैंने बता दी थी, वाज दैट क्लियर? जॉब, ठीक है, चलिए टू फैक्टर थियरी से मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, तो टू फैक्टर थियरी जनरली ब्रीफली अगर हम देखें, इसमें दो फैक्टर्स जो हैं, वन इज मोटिवेशन एंड वन इज हाइजीन। मोटिवेशन का मतलब एनीथिंग दैट ऑफर्स ग्रोथ, एंड हाइजीन मीन्स एनीथिंग दैट ऑफर्स कंफर्ट। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि सपोज करें कि आपको एक जॉब ऑफर होती है फ्रॉम समवेयर लाइक आगा खान, ठीक है, AKU लैब से या डाउ लैब से आपको कोई जॉब ऑफर होती है। दीज आर नाउन नेम्स इन आवर सिटी। तो वी एक्सपेक्ट, नंबर वन, कि यहाँ पर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और बिकॉज इनके पास फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, इनके पास ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा, वी ऑल्सो बिलीव कि इनकी जो है वो पे सैलरी बहुत अच्छी होगी, फिर जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा, आपके पास जो है कंफर्टेबल सीटिंग होंगी, एयर कंडीशनिंग होगी, और जो एनवायरनमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सा होगा। This is our expectation. So if you get an offer from a place like this, then you would be more motivated to say yes. ठीक है, because a lot of us feel like हाँ, ये कुछ हमें पता है कि ऐसे इदारे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर काम करने का मौका हम गंवाना नहीं चाह रहे होते हैं। Afan is one of those examples. So if you get an offer from a place like that, you are more likely to say yes because you believe कि उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी, लर्निंग बहुत सारी होगी। तो योर मोटिवेशन इज ऑलरेडी डिपेंडिंग ऑन द टू फैक्टर्स विच यू एक्सपेक्ट कि पूरी हो जाएंगी, पहली चीज है। अब जब आप जॉब करने जाते हैं तो एक्सपेक्ट करें या सपोज करें कि द सुपरवाइजर दैट यू हैव इज नॉट इज अ बुली, वो आपको बात बात पे अंडरमाइन करता है, डिग्रेड करता है, इंसल्टिंग किस्म का है, आपको बहुत शॉर्ट डेडलाइंस दे देता है काम के लिए, एंड आपको अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फिर वो एक्सप्लेन करने के बजाय उसमें आपको और ज्यादा जो है वो डिग्रेड कर देता है, ठीक है। सो इफ यू गेट अ सुपरवाइजर हु इज कॉन्स्टेंटली bullying you and not allowing you to like make mistakes at all, and उसके अपने स्टैंडर्ड्स उसने कुछ रखे हुए हैं, उसने आप देखें कि खुद उस तरह का काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है कि नहीं, आपसे कह रहा है कि आप वो चीजें करें, अपना काम भी आपसे करवा देता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आप देखें कि एक जगह तो हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन का फैक्टर विच इज ग्रोथ एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो यू विल सी कि अच्छा, यहाँ पर आपको काम जितना ज्यादा मिल रहा है उसमें यू हैव द ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन का फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, बट हाइजीन का फैक्टर पूरा नहीं हो रहा, बिकॉज फिजिकल आपको कंफर्ट तो मिल रहा है बट इमोशनल कंफर्ट नहीं मिल रहा। तो इमोशनल कंफर्ट किस तरह से है कि वही बात है कि you're constantly in this bullying environment, आपको constantly degrade किया जा रहा है, तो इमोशनली you're not feeling good। तो इस तरह की जॉब इज गोइंग टू कॉज यू मोर डिससेटिस्फैक्शन। सैलरी आपकी बहुत अच्छी है, पे स्केल बहुत अच्छा है, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, सारा कुछ है, ठीक है, बट अल्टीमेटली व्हेन यू एंटर दैट एनवायरनमेंट यू आर विद अ पर्सन हु इज bullying you, who is constantly degrading you, तो वो एक टेंशन जो है वो constantly रहती है। So there is a high chance that you will not be satisfied with this job. There is also a high chance कि अगर आपको कहीं और से ऑफर आती है, then you might leave this place, despite the fact कि आपकी जो है वहां पर ग्रोथ के चांसेस भी हैं, बाकी फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, बिकॉज वी नीड, अकॉर्डिंग टू लाइक आई सेड, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, हाइजीन फैक्टर्स जो है वो बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू परसिस्ट इन वट एवर यूर डूइंग, या जो भी आप चीज कर रहे होते हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन के हवाले से दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट ही सेड कि अब इसी चीज को अगर आप अप्लाई करें ऑन योर एक्सपीरियंस विद यूनिवर्सिटी, ठीक है, एज स्टूडेंट्स, आप
आपने क्यों एडमिशन लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए. व्हाई डिड यू कम टू Zabas? What were the motivational factors and what were the hygiene factors जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, या क्या रीजन? जी बताइए. स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. बिफोर यू गॉट एन एडमिशन, मतलब बिफोर यू स्टार्टेड, ठीक है, हम अभी पहले शुरू में एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं. व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू स्टार्टेड, फिर हम बात करेंगे अबाउट हाउ व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड. ओके, इट वाज नियर माय हाउस, इट्स अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, पर्सपेक्टिव काफी अच्छा था, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें नियर योर हाउस का मतलब देयर इज अ फिजिकल कंफर्ट, तो हाइजीन के हवाले से ये एक पॉइंट है कि बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. वेल नोन यूनिवर्सिटी है, वही फिर बात होती है कि जो मोटिवेशन फैक्टर है कि ग्रोथ है, आपके ख्याल में यहाँ से हमें ग्रोथ मिल सकती है. एंड प्रोस्पेक्टिव की अगेन फ्यूचर के हवाले से भी यू बिलीव कि वहीं वहीं पर हम उसकी बात करते हैं कि ग्रोथ यू फील की प्रोफेशनल पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो सकती है. अच्छा, कैंपस देख के डिमोटिवेट हो गए. व्हाट अबाउट द कैंपस डीमोटिवेटेड यू? अच्छा, सुमेरा भी कह रही है इट्स नियर, इट्स गो एंड इट हैज सिमिलर डिग्री आई ओरिजिनली वांटेड टू डू, इट डिडंट मैटर हाउ कैंपस वाज. ठीक है, तो आपके लिए अगेन नियर है, इसका मतलब फिजिकल कंफर्ट है. सिमिलर डिग्री है जो आपको चाहिए थी, विच मीन पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपकी थी, तो मोटिवेशन फैक्टर यहाँ पूरा हो रहा है. अच्छा, सारे घर हैं ये देख के आप जरा डिसअपॉइंट हो गए, तो यहाँ पर फिर हम उसी की बात करते हैं कि कौन सा फैक्टर आपका अफेक्ट हो रहा है, द हाइजीन फैक्टर. कि आपके ख्याल में यू wanted something that maybe looked more like a campus or big buildings, but because these were small sort of जैसे बंगलोज छोटे छोटे से हैं जिनको कैंपस के तौर पे यूज किया जा रहा है या जिनको डेवलप किया गया, तो फिजिकल कंफर्ट आपके ख्याल में शायद यहाँ पॉसिबल मतलब आपको नजर नहीं आया थ्रू आउट. ठीक है, अब लेट्स जस्ट मूव ऑन. और मुझे बताइए कि राइट नाउ if I have to say कि what are your motivational factors and what things demotivate you when you study, ठीक है. एंड इसको हम थोड़ा सा जो है अभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इससे हट के बात करते हैं, बिकॉज दिस इज जाहिर है दिस इज अ न्यू सिचुएशन. हम इससे पहले की बात करते हैं जो भी आपका मतलब 2 साल 2.5 साल जितने भी आपके गुजरे इन द कैंपस, उसके हवाले से मुझे बताइए फीलिंग्स को याद करके कि व्हाट वर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर यू, उसमें क्या क्या चीजें थी जो आपको अच्छी लगती थी जिसकी वजह से आप चाहते थे कि आप कंटिन्यू करें, और कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे आपको लगता था कि मतलब बिल्कुल फजूल है यहाँ पर आना, या हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का या आने का, इस तरह की क्या चीजें?
मैम मोटिवेशन ये होती थी कि मतलब हम जब कोई हर सेमेस्टर में कोई नया सब्जेक्ट देखते थे तो होता था कि हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, लाइक इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्नड इन कॉलेज, लाइक साइकोलॉजी है, फार्मा है। तो वो एक मोटिवेशन होती थी कि आई वांट टू कंटिन्यू, मतलब हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन हम्म डी मोटिवेशन जहाँ पे फेस होती थी या प्रॉब्लम्स के, जब हमारा जैसे लैब सेशंस होते थे वो इतना अप टू मार्क नहीं थे जितना अप टू मार्क उनके पर्सपेक्टिव में दिखाया गया था। और हम्म इसलिए और फिर जितना हमें इलेक्टिव्स का बोला गया था उतने इलेक्टिव्स हमें ऑफर नहीं हुए थे। तो फिर हम्म वो सब चीज़ें जब माइंड में आती हैं तो फिर होता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ कुछ दिखाया कुछ गया और मतलब दिया कुछ और जा रहा है। ओके तो ठीक है। तो इसका मतलब अब दोनों ही चीजों में आपकी जो मोटिवेशन का ही फैक्टर है। ठीक है, थैंक यू फातिमा। मोटिवेशन का ही फैक्टर जो है इसमें आप देखें कि इनिशियली भी जैसे जो आपने एग्जांपल दी इसमें आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि डिफरेंट चीजें लर्न कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मोटिवेशन पीस। ठीक है कि ग्रोथ है, लर्निंग है। एंड फिर आपने जैसे कहा कि लैब्स से अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं कि वो चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर भी आपकी एक ग्रोथ एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन का भी फैक्टर हो सकता है, इसमें हाइजीन का भी फैक्टर इन्वॉल्व हो कि आप फिजिकली या आपको लग रहा हो कि वो फैसिलिटीज अगर नहीं है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट्स अगर नहीं है, तो वो फिजिकल या वो हाइजीन को रेफर करता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इस जो थियोरी है इसमें ये टू फैक्टर्स क्या हैं, मोटिवेशन एंड हाइजीन किसको कहते हैं, और इसको आप अप्लाई कर सकें इन डिफरेंट सिचुएशंस। एनीथिंग दैट यू डू, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, आप इसको अपने घर की मतलब किसी भी ऐसे काम में जिसको करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, कोई आपकी हॉबी है जो आप करते हैं, या कोई ऐसी चीज जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में करते हैं, या कोई और इंटरेस्ट अगर आपके हैं, घर के कोई काम ऐसे हैं जो आप कर रहे होते हैं, तो उन सब चीजों पे आप यही अप्लाई करके देखें कि उसमें आपका कौन सा फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व है और किस फैक्टर की क्या चीज इन्वॉल्व है। तो उसमें मोटिवेशन फैक्टर क्या है, हाइजीन फैक्टर क्या है। एंड मोस्टली डिससेटिस्फैक्शन जो है वो हाइजीन फैक्टर के खत्म होने से डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है। एंड अगर उस काम में आपके बहुत ज्यादा स्टेक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग का शौक है और आपने सोचा कि अभी चलें, क्वारंटीन चल रहा है, हम लोग जो है हमारे पास टाइम ज्यादा घर पे गुजारने का टाइम है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो हम कुछ कुकिंग कर लें, कुछ तरह की चीज कर लें, तो दैट इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, वो आपकी मोटिवेशन है जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया। बट टर्न्स आउट आपको सामान नहीं मिल रहा है अगर, ठीक है, या आप जो कर रहे हैं वो उसमें प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या चीज सही नहीं बन रही है, तो वहां पर फिर हम कहते हैं कि एक देयर इज अ मतलब फिजिकल डिस्कम्फर्ट, उस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, या आपके घर की जो है वो चीजें खराब हो रही हैं, या आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि उसमें हाइजीन आपका प्रॉब्लम है, फिजिकल कंफर्ट नहीं है। एंड अगर आप थक रहे हैं बहुत ज्यादा तो भी वही वाली बात है कि फिजिकल कंफर्ट नहीं है। एंड इफ यू फील कि अब सारी चीजें बना ली, इसमें और कुछ नया नहीं है, दैट मीन्स कि मोटिवेशन फैक्टर इसमें कम हो रहा है। एंड उसकी वजह से जो है वो आपको लगे कि अब मतलब दैट विल डिसाइड वेदर यू विल कंटिन्यू टू डू इट, या आप उस चीज को रोक देंगे, आप उस चीज को खत्म कर देंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट थियरी दैट वी हैव इज द ह्यूमनिस्टिक थियरी। अकॉर्डिंग टू देम, ये हम पहले भी कर चुके हैं तो मैं इसको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, हमने पर्सनालिटी थियरी में भी इसको पढ़ा था कि डिफरेंट जो वो है आपके, स्टार्ट हम फिजियोलॉजिकल नीड से करते हैं, फिर आपकी सेफ्टी नीड्स हैं, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस है, स्टीम नीड्स हैं, एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थियरी आवर मोटिवेशन लाइज ऑन अचीविंग दीज गोल्स। तो उनका ये ख्याल है कि हम वट एवर वी आर मोटिवेटेड टू डू इज रिलेटेड टू फुलफिलिंग दीज नीड्स। तो वही जैसे पर्सनालिटी में भी था कि हम इस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारी पर्सनालिटी जो है वो अडेप्ट करती है, चेंज करती है, एंड वी मूव टूवर्ड्स अचीविंग दीज थिंग्स। यहाँ पर भी मोटिवेशन के पीछे भी उन्होंने यही रीजन बताया है कि फर्स्ट आपकी मोटिवेशन जो है वो क्योंकि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, तो दैट इज व्हाई यू डू इट बिकॉज इट इज योर नीड। एंड देन एज यू मूव अपवर्ड और चीजों की भी इस तरह से मोटिवेशन आती है। एंड ये भी हमने पहले डिस्कस किया है शायद कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स द हायर नीड्स डोंट नेसेसरली हैव टू बी ऑन टॉप, कभी कभी वो नीड्स पहले इंसान की पूरी हो जाती हैं,
यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइड में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सो वी हैव मतलब लास्टली अगर हम थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करें तो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन में एक फर्क होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर दोज दैट अराइज फ्रॉम आउटसाइड, जैसे हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, ठीक है। तो उसमें फिर यही है कि जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं जिससे आप मोटिवेटेड होते हैं, दैट इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड जो अंदर से आती है, जो आपकी सेल्फ से रिलेटेड होती है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो वो इंटरनली आती है। If your motivation is completely 100% extrinsic, तो there is a chance कि you might lose motivation अगर आपको externally support या appreciation या जो भी motivation है वो मिलना बंद हो जाए। लेकिन अगर आपकी motivation intrinsic है तो फिर there is a chance कि you will continue despite pressure from outside, because you will continue to feel rewarded and you will feel self-satisfied while you're doing it. अगर बाहर से कोई आपको सपोर्ट नहीं भी करता तब भी आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आपके एक्शंस हैं या जो भी आपके गोल्स हैं, इनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है उस पर फोकस करिएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपके हाथ में नहीं है, वो आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो मोटिवेशन को और पुश करती है। बट अगर ना भी मिले तो यू शुड बी एबल टू जस्ट कंटिन्यू बिकॉज ऑफ इट हाउ इट मेक्स यू फील इंटरनली। Lastly, we have some basic motives, ठीक है। These are related to biology, जो हमारी कुछ मतलब basic motives हम इसलिए कह रहे हैं कि these are the motives that we are born with, that is already present in us beforehand. Briefly इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले hunger is a basic motive. It is already present in every person, मतलब we cannot survive without it. And हम जैसे सुनते हैं कि ये जो है जैसे लोग चोरियां कर रहे हैं, सब कुछ है तो हम कहते हैं कि नहीं गरीब है, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, तभी अगर चोरी कर रहे हैं तो दे जस्ट वांट टू ईट समथिंग। तो हंगर इज समथिंग दैट पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट। वी विल लिटरली आवर बॉडीज, ठीक है, दे विल डाई, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट फूड। तो हंगर कैन बी अ वेरी पावरफुल मोटिवेटर। बहुत सारे लोग छोटे मोटे जैसे हम देखते हैं कि जो गरीब तबका है वो हर किस्म का काम कर लेते हैं, हर किस्म का लेबर कर लेते हैं, ओनली सो दैट दे कैन गेट सम मनी एंड गेट सम फूड, ठीक है। So hunger is something that can motivate a lot of people and it's a very powerful motivator. ठीक है, तो ईटिंग की अगर हम खास तौर पे बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं that influence eating. Number one, the responsiveness to food cues. कि अगर हम हमें कोई खुशबू आए खाने की या हम देख लें कोई खाने की चीज तो देयर इज अ हायर चांस कि हम खाना शुरू कर दें। तो इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज बिकॉज वी आर हंग्री, जो हम जैसे कहते हैं कि कभी भूख नहीं भी हो तब भी कुछ खाना देखने से हमारी उसको हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। सेकेंडली, इमोशनल अराउजल, दिस इज लाइक इमोशनल ईटिंग जिसको कहते हैं। too if you're anxious, if you're tense, if you're stressed, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं who start eating when they're feeling very emotional, जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। इसीलिए भी यू विल सी कि डिप्रेशन जैसी जो इलनेसेस होती हैं उसमें समटाइम्स सम पीपल दे स्टार्ट गेनिंग वेट एज वेल, ठीक है। वेट लॉस भी पॉसिबल है, उसमें दोनों तरह से होता है, बिकॉज सम पीपल दे स्टॉप ईटिंग क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं रहती तो survive or do anything, so they stop that. But sometimes emotional eating can occur. So depression or anxiety or stress, it can lead to people eating more. और ज़्यादातर ये जो emotional eating होती है, इसमें you tend to eat things that are high in carbs, जो आपको फौरन से आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा दे दे, ठीक है। तो आप बहुत स्टार्ची फूड खाने की, फ्राइड फूड खाने की, चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीजें विच इज वेरी हाई इन शुगर एंड हाई इन कार्ब कंटेंट, उसको खाने की क्रेविंग या नीड फील ज्यादा होती है, विच इज व्हाई देयर इज अ वेट गेन फॉर दोज पीपल, ठीक है। सो इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू ईट इमोशनली, वो भी आप बहुत जल्दी आप मतलब यू कैन पिक इट कि ज्यादातर आप जो है वो खाते ही ज्यादा तब हैं जब आप इमोशनल होते हैं, तो इट कुड गेन। सो इमोशनल अराउजल कैन ऑल्सो अफेक्ट ईटिंग एंड इन्फ्लुएंस ईटिंग। Lastly, there is a conscious restraint of eating, which is like the opposite. एक जगह आप emotionally जो है वो over eating कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भूख लगते हुए भी आप अपने आप को restrain कर रहे हैं, you are not eating anything because because that is the control that we have. तो यहाँ पर वही बात है कि weight loss करने के लिए या some people they are like नहीं हमें healthy खाना खाना है, या हम अगर generally देखें कि अगर कोई diabetic है, ठीक है, तो उसको
बहुत ज़्यादा चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट करना होता है अपने आप को, बिकॉज फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो वहाँ पर देयर इज अ कॉन्शियस रिस्ट्रेन कि हमें भूख भूख भी लग रही हो, हमारा दिल भी चाह रहा हो, तब भी हम उसको ना खाएं. सो even though hunger is something biological and it is a basic motive, eating behal is something that can differ from person to person, which is why everybody's eating habit is different. Even if you're not dying, we feel like we're starving and start binging. It takes days to starve to death, but these days people think that if we don't eat 2 to 4 times a day, we'll die. Social habits mean a lot and affect behavior. ठीक है, yes, एक मतलब वही है कि हाँ, क्योंकि द फीलिंग ऑफ हंगर अगर आप इसकी बायोलॉजिकली देखें तो इट सेंड, जब मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं दैट वी आर हंग्री, कि खाना नहीं है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वड एज वेल. जैसे जिन जिन लोगों को डाइट करना होता है, खाना कम खाना होता है, तो उसमें हम जैसे सजेस्ट करते हैं कि यू नो लाइक आप देखें कि डाइटिशियंस वगैरह भी कहते हैं कि आप सैलड्स खाएं बहुत ज़्यादा, टेक अ बिग बोल ऑफ सैलड, तो उसमें कैलोरीज नहीं है बट इट लुक्स लाइक इट्स अ लॉट. So you have to most of the time trick your brain. तो अगर आप for instance एक एक हम कहते हैं कि एक दिन में there is a calorie need for your body. सर्वाइवल के लिए आपकी बॉडी को रफली, ठीक है, रफली हम बात कर रहे हैं, इससे कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, लेकिन रफली 2000 कैलोरीज अ डे हर इंसान को चाहिए होती हैं टू सर्वाइव. मतलब कि वो ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम सांस ले रहे हैं, हमारी डाइजेशन हो रही है, इन सब में एनर्जी लग रही है, इन सब में कैलोरीज लग रही होती है, ठीक है, या हम हमारी स्लीपिंग है, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज दे ऑल रिक्वायर सम काइंड ऑफ कैलोरी. ठीक है, तो हम जो 2000 कैलोरीज है वो वेट गेन में नहीं इन्वॉल्व होता, वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन की, अगर आप पूरा दिन बैठे भी रहें तब भी योर बॉडी इज स्टिल यूजिंग अप एनर्जी, बिकॉज आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं. तो जो भी डिपेंडिंग ऑन योर वेट आपकी कैलोरी नीड है वो आपको चाहिए होती है. ठीक है, तो इफ यू गेट दैट मच, दैट इज इनफ फॉर यू टू सर्वाइव, योर बॉडी विल नॉट डाई. बट अगर हम कोई चीज, जैसे आप एक बार ऑफ चॉकलेट खा लेते हैं, दैट बार ऑफ चॉकलेट प्रॉब्ली हैज लाइक 5 to 600 कैलोरीज, लेकिन इट्स जस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट, आपने उसको खा लिया, यू वोंट फील कि आपको 500 या 600 जो है वो कैलोरीज मिल गई हैं, कि अब आप इतने एनर्जेटिक हैं एज इफ यू ईटन अ होल मील. आपने एक ब्रेकफास्ट या लंच अगर आपने पूरा का पूरा खा लिया, तो उससे आपको जितनी एनर्जी मिलती है उतना ही आपको एक बार ऑफ चॉकलेट से भी मिल सकता है, अगर आप एक बड़ा बार खाएं, समथिंग दैट हैज दिस मच कैलोरीज. बट साइकोलॉजिकली वी डोंट फील दैट. कभी भी कोई जो है वो चॉकलेट खा के नहीं कह सकता कि बस आई एम ओके, मतलब भूख फिर भी लगती है. तो दैट काइंड ऑफ भूख, दैट काइंड ऑफ हंगर इज मोर साइकोलॉजिकल. इट्स नॉट व्हाट योर बॉडी नीड्स, it's more the whole, you know, it's a psychological thing कि we need to have some food, कि खाने जैसी कोई चीज हो. जब तक आप रोटी नहीं खा लेते, राइस नहीं खा लेते, ब्रेड नहीं खा लेते, समथिंग यू नो दैट लुक्स लाइक फूड, पोटेटोज हैं या समथिंग दैट इज यू नो लाइक सॉलिड फूड, तब तक आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ खाना खाया. तो यू कैन हैव एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. आप पूरा दिन, ठीक है, कैंडीज एंड चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ दैट, but you still need food to make you feel satisfied. So that is not biological, but that is more psychological. Next is thirst. Thirst is another basic motive. हमें पानी चाहिए होता है, something again that our body cannot survive without. आपकी सेल्स जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं, you're going to start having generally भी आपकी आपके ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे if there is no water. So again, thirst is another basic motive. थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, जस्ट अबाउट हाउ द वाटर, मतलब जो बॉडी के अंदर नीड होती है, हाउ इज इट डेवलप. ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ पेन इज अनदर बेसिक मोटिव. इनहेरेंटली पीपल दे ट्राई टू अवॉइड पेन. कोई भी ऐसी चीज, इसलिए आप देखें कि जब हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स हैं, तो उसमें टॉर्चर इज वन ऑफ द मेथड्स. जैसे ये जो departments हैं, they investigate people. Why? Because when you torture somebody and you produce pain, there is a person does not want to tolerate pain. Okay, so there is a high chance that somebody will break down and they will want to avoid pain. तो हमारे लिए भी यही है, and इसमें physical pain as well as emotional pain दोनों involved है. So when we feel that something is going to cause pain, it is a natural instinct to try to avoid it. ये हमारा सर्वाइवल की वजह से भी इंसान के अंदर डेवलप्ड है, and because if we don't avoid it, then there is a chance that you would die.
सो दिस इज लाइक एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, सर्वाइवल के लिए इंसान के अंदर जरूरी है कि हम पेन को अवॉइड करें. अब देयर इज दिस इलनेस, एक बहुत रेयर, आई डोंट रिमेम्बर इफ इट इज अ जेनेटिक कंडीशन या कोई और चीज है, बट उसके अंदर ये है, आई थिंक इट्स जेनेटिक कंडीशन, जिसमें द पर्सन डज नॉट फील पेन. उनके पेन रिसेप्टर्स समहाउ डल हो जाते हैं या पेन रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते हैं. तो इवन इफ द पर्सन लाइक, if you if there's a cut on the hand या इस तरह की किसी कोई चीज हो, तो पेन फील नहीं होगा. तो ज्यादातर क्योंकि ये चीज आई थिंक इट इज जेनेटिक, तो बचपन से ही ये चीज होती है, तो इसमें इन इन बच्चों का सर्वाइवल रेट बहुत मुश्किल होता है. मतलब दे डोंट सर्वाइव पास्ट द एज ऑफ 10, 11, 12. वजह ये है कि बच्चे आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट. उनकी जो है, क्योंकि वो जाहिर है उनकी हैबिट्स होती है, तो अदरवाइज दे वेरी नॉर्मल, कोई उनका मतलब ब्रेन डैमेज किसी किस्म का नहीं है. So they're very normal, and children, they hurt themselves a lot. That is how children learn to protect themselves, is because when they hurt themselves, they feel pain. अब वो भाग रहे हैं, वो गिर गए, उनको चोट लग गई, and that hurts, so they know not to run next time. ठीक है, या किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया, किसी और चीज को कर दिया, that is going to create burn होगा, pain होगा, cut होगा. But when these children they don't feel pain, तो ऐसा भी हो सकता है कि most of the time ऐसा होता है कि they have an accident and they're bleeding out, but उनको realize नहीं होता that they're bleeding out until they see it, because they don't feel any kind of pain. उनका हाथ जल गया है, उन्होंने कोई गर्म चीज पकड़ ली है, and their skin is charred but they cannot feel pain. ठीक है, तो ये जो एक condition होती है, this is why survival in this kind of condition is very difficult. Parents को बहुत ज्यादा attentive रहना पड़ता है about what the child is doing. Otherwise they might hurt themselves and they might मतलब ठीक है, उनको वो because of lack of pain. So having pain in itself is important for survival, and we cannot survive if we don't feel that pain. ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि जब भी पेन होगा, वी विल ट्राई टू अवॉइड दो स्टिमुलस सो दैट वी वुड इंश्योर कि हम सेफ रहें. ठीक है, लास्टली maternal behavior is also another basic instinct. अब maternal behavior ज्यादातर हम इसको basic इसलिए कह रहे हैं because we see this in animals as well. बहुत सारे हम हमें National Geographic पे या इस तरह की जो animals की documentaries होती हैं, we can find it how like how the mothers of those animals they behave, how they try to protect their children even though they don't have a very high intelligence, या उनका उनका जो ब्रेन इवॉल्व उस तरह से नहीं है जैसे इंसानों का है, बट इवन देन they display this protective behavior, this ठीक है, ये जो एक nurturance वाला behavior है, the mothers display that, which tends मतलब makes us believe कि maternal behavior itself is also very instinctual, it's very natural. Having said that, we don't necessarily have to say कि जो भी चीजें हम अपनी लाइफ में मतलब हम अपने अगर we talk about humans, then it doesn't mean that mothers will always be unconditional and mothers will always be मतलब positive influence on you and everything, या वो हमेशा आपको protect करेगी. There are several other factors which overtake us as human beings, because as people, as humans, we have a very complex brain, we have a lot of needs. So with people, जो maternal behavior है या maternal instinct है, that can be um, overpowered by some other need or some other instinct which is much more stronger. ठीक है, which is why there is ये जो हम consistency देखते हैं in maternal behavior in parenting, वो ह्यूमन बींग्स में हमें ज्यादा नजर आती हैं. एनिमल्स में उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका है नहीं, तो एनिमल्स दे बिहेव बेस्ड ऑन देयर इंस्टिंक्ट, उनकी सारी चीजें इंस्टिंक्ट बेस्ड ही होती हैं. दे आर नॉट केपेबल ऑफ ठीक है बिहेविंग इन मच मोर इवॉल्व वेज, लेकिन ह्यूमंस कैन, तो हमारी और नीड्स उसमें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम बहुत दफा अपने इंस्टिंक्ट्स को भी सप्रेस कर लेते हैं, या हम उस हमारी वो इंस्टिंक्ट इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती. ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई we see inconsistencies in human behavior. That is the end of this lecture. हम next topic start करते हैं. Let's take a 10 minutes break ले लेते हैं. ठीक है, इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट है, 11:56. तो come back at 12:05. मैं कॉल एंड नहीं कर रही हूँ. Still be here. तो हम फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे.